Welcome to Scratch Coding Workshop. So let's begin this. We will start with the overview of this today workshop. On day one, like today's day, we will be introducing you to the Scratch programming. What are the applications of Scratch? We will introduce you to the setup and installation of Scratch, like where we are going to use this platform, how we are going to use this. Then we will understanding the user interface, what user interface is provided and how we are going to code it. Then at the end of the session, we will be developing a game, ping pong game we call it. So the major objective of this workshop is a game development in Scratch. And also at the end of day one, we will be providing mini assignment. So you have to submit it tomorrow. That is on day two. On day two, we will be starting with the advanced game development using Scratch. We will be exporting that game in .apk file format. .apk file format is the file format for Android applications. Okay, so we will be downloading APK application in your phone, and we'll be playing it in our own Android phone. Then we will also upload this game on Play Store. Like we will show you the steps how to upload this game on Play Store. And then finally the scope of Scratch programming, what else you can do, how creative can you get with this Scratch programming. And at the end, we'll be having doubt and feedback sessions. That is day two. Okay, so we will start with day one, content of day one. So first of all, what is programming? For those students who are starting just now, they must have been also familiar with the term programming, like it's used quite more frequently nowadays. For them, once again, I will tell them that programming is the process of creating a set of instructions that tells a computer how to perform a task. Okay, it's just a set of instructions. Okay, so there are various types of programming languages depending on what you want to develop. Okay, there is C. You might already know about C, C++, Python, Java, JavaScript. All these have like different applications. They are famous and specific for different applications. Okay, like C, C++ are quite fast languages. They are usually used for operating system development. Then Python is famous for its libraries and used for data science, machine learning, automation, also backend development also. Okay, Java is used for backend development, also for Android application. Similarly, Kotlin is used for Android application. If we are talking about web development, HTML and CSS are the basic structure. Like the front end development is done in HTML and CSS. Whatever the website pages you see, everything is basically coded in HTML and CSS. So you see that all the programming languages has unique function. Like they are here to serve a purpose of like some are for Android development, some are for website development, some are for OS developments. Okay, moving on, I will start with what is Scratch. Like you must have heard about like programming, you have to code, you have to write instructions, but Scratch is somewhat different than these languages. Okay, Scratch is visual programming tool. That is means you don't have to write or type the code, you just have to arrange the blocks. So basically Scratch is a visual programming tool developed by MIT University, and this Scratch programming is free for everyone. Okay, you can see on the left hand side, that is how it looks like. There are certain blocks: project, spheres, passion, play. So we have to arrange those blocks in certain manner to code in Scratch. Okay, we don't have to write like how we do it in C or Python. We don't have to write in that way. We have to arrange blocks here. Before that, I will hand over to Mrunal Joshi, who is one of your instructor for today's workshop also. So she will be continuing the next part. Yes, thank you, Mr. Paresh. I think I'm audible to all. Am I? You can reply in chat box, or you can give any reaction or anything. You can unmute yourself and say. Okay, so now we will see what are the application of Scratch. Okay, आप कोई भी language सीख रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका application क्या है, क्यों हम सीख रहे हैं, इसका फायदा क्या हो सकता है.
तो हम वन बाय वन वो देखेंगे. फर्स्ट इज स्टोरीज एंड एनिमेशन. आप स्क्रैच यूज करके एनिमेशन भी बना सकते हैं, स्टोरीज भी बना सकते हैं. सेकेंड वन इज गेम, जो हम इस वर्कशॉप में सीखेंगे गेम कैसे बनाते हैं. थर्ड वन इज एंड्रॉयड ऐप, जो हम डे 2 में सीखेंगे एंड्रॉयड ऐप कैसे बनाते हैं. एंड लास्ट वन इज रोबोटिक्स. Okay, so these all are application of Scratch. There are too many, but these all are free. Moving on. Okay, so setup and installation. This is very 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 important. Setup and installation. अगर आपको स्क्रैच सीखना है तो पहले आपके सिस्टम में ये स्क्रैच जो भी है, वेबसाइट है या ऐप भी है, मोबाइल ऐप, तो वो इंस्टॉल्ड होना चाहिए. तो आई होप सबके पास लैपटॉप्स होंगे. Okay, so I got one reply who don't have laptop. Okay, 3 more. ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम. आपके लिए एक इंस्ट्रक्शन है कि आप क्रोम ही यूज करोगे इसके लिए. और वहाँ पे एक ऑप्शन होता है डेस्कटॉप साइट. जब आप डेस्कटॉप साइट, तो जब आप सर्च करोगे स्क्रैच के लिए, तब डेस्कटॉप साइट में देखिएगा, तब आपको फुल स्क्रीन दिखेगा वो. ठीक है, बी केयरफुल. Okay, we will start. First is you have to copy paste this link on your Google Chrome. Okay, हम लोग simultaneously करेंगे. जिसके पास लैपटॉप है वो टैब चेंज करके शिफ्ट करके उधर गूगल पे जा सकते हैं. Okay, सब लोगों ने सर्च किया स्क्रैच. Okay, so we'll continue. So second step is for creating ID, click on Join tab. ठीक है, is it visible to you? यहाँ पे Join tab है, आप वहाँ पे क्लिक करो. Okay, then create password. सब लोग कर रहे हैं पासवर्ड वाला स्टेप. ओके, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट. अब ये 3-4 स्टेप है जहाँ पे आपको पूरा आपका डेटा भरना है. आपकी कंट्री कौन सी है, देन आपका बर्थ मंथ एंड बर्थ ईयर, आपका जेंडर, यहाँ पे आपका ईमेल डालना है आपको. ईमेल डालने के बाद यू कैन क्रिएट योर अकाउंट. गेट स्टार्टेड. यस, यहाँ पे आपको येलो स्ट्रिप में लिखा हुआ आएगा कंफर्म योर ईमेल. आपको ईमेल पे जाके ये कंफर्म करना है. स्क्रैच का मेल आया होगा आपके ईमेल बॉक्स में. ठीक है, कंफर्म योर स्क्रैच अकाउंट. आप लोग यहाँ पे जाके कंफर्म कर सकते हो. ठीक, नेक्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन क्रिएट टैब एंड गो टू योर एडिटर. सब लोग क्रिएट पे क्लिक कीजिए. ये वाला स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, स्क्रैच एडिटर. इसको बोलते हैं स्क्रैच एडिटर. ठीक है, अभी मेरा भी खुल गया है. ये है स्क्रैच एडिटर. अब इसमें टोटल 4 विंडोज है. हम वन बाय वन उनको देखेंगे, क्या है, उनके नाम क्या है, क्या करते हैं. ठीक है, फर्स्ट वन इज स्प्राइट विंडो. On your right bottom side, whichever window is, it is called as sprite window. Yeah. On right upper side, you have stage window. You can see output of your program on this screen in stage window. Yeah. Third one is code blocks. नाम से आपको पता चलेगा code blocks मतलब यहाँ पे आपको बहुत सारे blocks दिख रहे हैं, इसलिए इस window को बोलते हैं code blocks. And last one is coding area. आपके पास ब्लॉक से कोड करने के लिए, आउटपुट देखने के लिए विंडो है, बट कोड करना किधर है, तो दिस इज द एरिया वेयर यू हैव टू कोड. ठीक है, एंड लास्ट वन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन. आपने प्रोग्राम लिख लिया, आपको वो प्रोग्राम रन करना है, तो हियर यू कैन सी ग्रीन फ्लैग, दैट इज योर स्टार्ट बटन.
and this octagon in red color is stop button. Okay, it is very simple, and Scratch is very user friendly. So I hope you all are clear with this. Next is what are sprite. Okay, sprite नाम कुछ अलग लग रहा है, but इतना कुछ है नहीं उसमें. Sprite is simply our character. ठीक है, जो भी कैरेक्टर पे हम लोग प्रोग्राम करने वाले हैं वो होता है अपना स्प्राइट. ठीक है, अब स्प्राइट के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं, या स्प्राइट लेना कहाँ से है, करना क्या है, वो सब. ठीक है, फर्स्ट इज चूज अ स्प्राइट. आप लोग आपके एडिटर में देख सकते हो, यहाँ पे ये आइकन है. ठीक है, इसके ऊपर 4 ऑप्शन है, तो ये क्या क्या करते हैं हम लोग वो देखेंगे अभी. ठीक है, वन इज चूज अ स्प्राइट, सेकेंड इज पेंट अ स्प्राइट. आप लोग जब चूज अ स्प्राइट पे क्लिक करोगे तब आपको एक स्प्राइट का पूरा डायरेक्टरी दिखेगा जिधर बहुत सारे स्प्राइट्स आपको अवेलेबल है. देन नेक्स्ट वन इज सरप्राइज. सरप्राइज इज यू कैन चूज एनी रैंडम स्प्राइट फ्रॉम लाइब्रेरी. एंड लास्ट वन इज अपलोड स्प्राइट. You can upload sprite from your computer too. So these all are 4 options for your sprite. Next one is editing your sprite. ठीक है, ये हम लोग अब उधर ही करके देखेंगे अपने स्क्रैच एडिटर पे. ठीक है, ये 4 ऑप्शन हमने देखे. चूज अ स्प्राइट करने के बाद पूरा लाइब्रेरी खुलेगा जहाँ पे आपको बहुत सारे स्प्राइट्स मिलेंगे. यहाँ से आप लोग कोई भी स्प्राइट चूज कर सकते हो. ठीक है, सेकेंड वन पेंट. जब आप पेंट पे क्लिक करोगे तब एक पेंट एडिटर खुलेगा. यहाँ पे आप कोई भी टूल यूज करके कोई भी स्प्राइट पेंट कर सकते हो. अभी मैंने यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ किया है, यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ हुआ है और वो स्प्राइट विंडो में ऐड भी हो गया. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वन इज सरप्राइज. यू कैन चूज एनी रैंडम स्प्राइट फ्रॉम लाइब्रेरी. सी, वी गॉट दिस स्प्राइट horse. And last one is upload. If you want to upload any sprite from your computer, you can do that too. Okay. And one more thing. Now I have this cat sprite, but you can edit its name too. Now it is showing name as sprite1. So मुझे अगर इसको cat रखना है तो I can edit from here. Next one, position x and y value. एज इन सबका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है तो आप सबको पता होगा कि एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स या पोजीशन या ये कोऑर्डिनेट सिस्टम सबको पता है. ठीक है, अभी एक्स एंड वाई का वैल्यू 0 0 है, इसका मतलब ये होता है ओरिजिन. सो अपना स्प्राइट अभी इन द मिडल ऑफ स्टेज एरिया है, मतलब ओरिजिन पे. सो आप इसको एडिट करके उसका पोजिशन भी चेंज करवा सकते हो लाइक दिस. ठीक है, आई विल कीप इट एट ओरिजिन. Now next option is show or hide. Now you can see sprite. Okay, if you want to hide this sprite, you can do that too using this option. Okay, now it is not visible. Fine. Next one is size. You can change size, you can maximize it or you can minimize it. Cool. 100 is normal. We will keep it 100. And last one is direction. अभी ये इस साइड में फेस कर रहा है. अगर आपको उसका फेसिंग या उसको रोटेट करना है या उसका एंगल चेंज करना है तो यू कैन चेंज इट बाय राइटिंग हियर और यू कैन सिंपली रोटेट दिस एरो. एवरीबॉडी कैन सी दिस. ओके, मूविंग ऑन. नेक्स्ट इज एनिमेटिंग स्प्राइट. ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है. मैं ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगी, बस खाली आपको पता चले कि ये होता क्या है. ठीक है, यहाँ पे 3 विंडोज है. फर्स्ट है कोड, कॉस्ट्यूम एंड साउंड. फिलहाल हमें कॉस्ट्यूम में काम है तो अभी कॉस्ट्यूम में आए. यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे स्प्राइट एक ही दिखता बाहर, बट अंदर उसके 2 कॉस्ट्यूम है, ये एक और ये एक. ठीक है, अब मैं इस पे फास्ट क्लिक करूंगी. आप स्टेज एरिया में देखिए कि क्या चेंज हो रहा है. ठीक है, दिख रहा है कुछ कैट चल रही है, ऐसा किसी को लगा? लेफ्ट राइट. ठीक है, इसका मतलब क्या हो सकता है कि आप ये कर सकते हो इसका यूज करके कि आप जब कैट चल रही है तो सिर्फ ऐसा ना रखते हुए आप उसका कॉस्ट्यूम हमेशा चेंज करते रहिए ताकि ऐसा लगे कि कैट चल रहा है. ठीक है, ऐसा हर एक कॉस्ट्यूम के साथ हो सकता है. आप लोग देख सकते हो अगर मैं किसी भी कॉस्ट्यूम के ऊपर अगर मेरा एरो की लेके गई तो वो
दिख अलग अलग कॉस्ट्यूम उसके दिख रहे हैं आपको, तो वो कैरेक्टर यूज करके आप इतने सारे एनिमेशन उसके कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट, what are backdrops, how to customize this, how to choose backdrops, what all 4 options for backdrops are there, we will see this. ठीक है, ओके अभी हम लोग एडिटर पे ये स्क्रैच को हम लोग डिलीट कर देते हैं यूजिंग दिस डिलीट बटन। अभी एक ही अपना स्प्राइट है कैट। अब बैकड्रॉप मैंने आपको कंसेप्ट बताया, बैकड्रॉप इज नथिंग डिफिकल्ट, बैकड्रॉप इज सिंपली बैकग्राउंड। अभी फिलहाल इसका बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, मतलब ब्लैंक है ये। ठीक है, अगर आपको बैकड्रॉप चूज करना है, जैसे स्प्राइट लाइब्रेरी था, सेम बैकड्रॉप लाइब्रेरी है। अब जब आप चूज अ बैकड्रॉप करोगे तब आपके सामने ये बैकड्रॉप लाइब्रेरी खुलेगा। इसमें से आप कोई भी बैकड्रॉप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आई विल चूज दिस वन। देन सेकंड ऑप्शन इज पेंट। जैसा सेम पेंट एडिटर स्प्राइट के लिए हमने पेंट किया था, सेम बैकड्रॉप के लिए भी आप अपना खुद का बैकड्रॉप भी पेंट कर सकते हो। ठीक है, एंड दीज आर ऑल टूल्स, विद द हेल्प ऑफ दिस टूल्स यू कैन ड्रॉ एनीथिंग। ठीक है, और नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन इज सरप्राइज। जैसे रैंडमली हम लोगों ने स्प्राइट चूज किया था, वैसा सेम बैकड्रॉप भी रैंडमली चूज हो सकता है। ठीक है, हुआ। एंड लास्ट वन इज अपलोड। जैसे स्प्राइट अपलोड किया था, वैसे सेम बैकड्रॉप भी अपलोड हो सकता है फ्रॉम योर कंप्यूटर। ओके, मूविंग ऑन। व्हाट आर ब्लॉक्स? जो लेफ्ट हैंड साइड में एरिया था उसको हम लोगों ने कोड ब्लॉक्स बोला, बट ये कोड ब्लॉक्स करता क्या है वो अब हम देखेंगे, उसका यूज क्या है। ब्लॉक्स आर पजल पीस शेप्स दैट आर यूज्ड टू क्रिएट कोड इन स्क्रैच। ये सारे ब्लॉक्स का यूज करके हम लोग कोड कर सकते हैं स्क्रैच में। सिंपल, वेरी सिंपल। जैसे हम लोग सी या C++, आप लोगों ने रिप्लाई किए थे कि बहुत लोगों को पता है C++ बैकग्राउंड मतलब लैंग्वेज पता है, वहाँ पे आप लोगों को पूरा कोड लिखना पड़ता है, हैश इंक्लूड जो भी लाइब्रेरी हो वो इंक्लूड करना पड़ता, लिखना पड़ता है। बट यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे खाली ब्लॉक उठाओ और रखो बस। ठीक है, यहाँ पे देर आर 7 प्राइमरी सेक्शन about these 2 blocks. There are 7 sections having different color, those are primary, and these 2 are customizable. Okay, you can make your own variable, you can make your own block too. ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक का कलर अलग अलग है। मैं अभी अपने स्क्रैच एडिटर पे आती हूँ। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे ब्लॉक सेक्शन है, कोड ब्लॉक सेक्शन। हर एक ब्लॉक का कलर अलग है, लाइक ब्लू, पर्पल, पिंकिश, येलो, हर एक कलर है अलग अलग। और एक और डिफरेंस एक और है, ये ब्लू के अंदर बहुत सारे ब्लॉक है। ऐसा नहीं है कि खाली मोशन ब्लॉक रख दिया तो मूव होगा, उसके अंदर भी बहुत सारे ब्लॉक्स है। और यू कैन सी हर एक ब्लॉक का कलर ब्लू है, जो मेन ब्लॉक का कलर है वही। अगर मैं इवेंट सेक्शन में गई तो हर एक ब्लॉक मुझे येलो कलर में मिलेगा। ठीक है, कंट्रोल में गई तो ऑरेंज में मिलेगा, ऐसा। ठीक है, ये हो गया कोड ब्लॉक्स के बारे में। अब हम हर एक ब्लॉक अलग अलग देखेंगे कि उनका यूज क्या है, कोड कैसे करना है, वो सब। ठीक है, आई थिंक ऑल आर नाउ फैमिलियर विद स्प्राइट, बैकड्रॉप, कोड ब्लॉक्स एरिया। अब हम लोग हर एक ब्लॉक्स का यूज देखेंगे, थोड़ा ऊपर ऊपर से देखेंगे, क्योंकि जब हम लोग गेम बनाएंगे तब आपको पता चलेगा उसका यूज एग्जैक्टली होता कैसे है। खाली मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगी आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मोशन ब्लॉक्स से। अभी मैंने आपको बताया था कि जो ग्रीन फ्लैग है उसका यूज ये होता है कि जब आपको प्रोग्राम, आप यहाँ पे कोड ब्लॉक्स पूरा अरेंज किए, बट आपको अभी प्रोग्राम रन करना है, तो आप सिंपली क्लिक ऑन दिस ग्रीन फ्लैग। ठीक है, तो हमारे पास इवेंट में एक ब्लॉक है व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड। ठीक है, ये हम लोग उठा के लेके आएंगे। इसका मतलब नाम से आपको पता चलेगा, व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक मतलब जब भी ग्रीन फ्लैग क्लिक हो तब क्या क्या एक्टिविटीज करने हैं वो इसके नीचे आएंगे। ठीक है, अगर अभी मैं लेती हूँ मूव ब्लॉक, मोशन ब्लॉक का चल रहा था अपना। अगर कैट को 10 स्टेप मूव कराना है
तो क्या करूंगी मैं, जब मैं ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करूं तब मेरा कैट मूव हो 10 स्टेप से। हो रहा है? अभी मैंने आपको पिछली बार बताया था कि ब्लॉक्स भी ऐसा नहीं कि कोई भी ब्लॉक किसी भी ब्लॉक के साथ कंपैटिबल होगा। अगर मैं बोलूँ कि पहले ही 10 स्टेप मूव कर फिर ग्रीन फ्लैग क्लिक करने के बाद कुछ और हो, तो ये नहीं हो सकता। जब ग्रीन फ्लैग क्लिक हो तब अपना स्प्राइट 10 स्टेप मूव होगा। ठीक है, अब हम लोग करके देखेंगे। ग्रीन फ्लैग पे क्लिक किया, आप कैट की तरफ देखिए, ये मूव हुआ। ठीक है, राइट हैंड साइड में मूव हो रहा है ये। अब मैंने 10 स्टेप से मूव किया, यहाँ पे आप x की वैल्यू देख सकते हो। अब ये राइट में जा रहा है तो x का वैल्यू बढ़ना चाहिए, राइट? कोऑर्डिनेट सिस्टम इंजीनियरिंग। सो मैं ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करूंगी, ये देखो 10 से ये बढ़ रहा है, 11, 21, 31, 41। ओके, इजी है ना? यही अगर C++ में बोलेंगे तो क्या करोगे? बहुत सारे लाइब्रेरीज होना, बहुत कुछ होना। ठीक है, सो इट इज वेरी यूजर फ्रेंडली एंड इजी। नेक्स्ट, अभी और एक ब्लॉक लेके देखेंगे मोशन वाला। मैंने आपको डायरेक्शन का बताया था। अगर कैट को आपको घुमाना है, मैं फिलहाल इसको 90 पे रखती हूँ, 90 डिग्री। ठीक है, और मैं इसको क्लॉकवाइज मूव करूंगी 10 डिग्रीज। देखो यहाँ पे पूरा सब ब्लॉक्स नाम से आपको पता चल जाएंगे। टर्न क्लॉकवाइज बाय 15 डिग्रीज। मैं ये अब उठा के इधर रखी हूँ। ये ब्लैक शेडो आ रहा, इसका मतलब ये इसके साथ कंपैटिबल है। ठीक है, मैंने इसका वैल्यू मैं यहाँ से एडिट कर सकती हूँ। जो मूव ब्लॉक था वहां पे भी आपको अगर 5 स्टेप से करना है मूव, 2 स्टेप से करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको एडिट करूंगी कि ये क्लॉकवाइज टर्न हो 10 डिग्रीज से। ठीक है, व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड, तो अब मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक करूंगी। क्लिक किया, मूव हो रहा है ये। यहाँ पे नीचे भी आप देख सकते हो 110, 120, 130, 140। ठीक है, अब ऐसे आप पूरा मोशन ब्लॉक आप खुद करके देखिए। मोशन ब्लॉक का यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक है। लाइक टर्न एंटी क्लॉकवाइज, अभी हमने क्लॉकवाइज घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हो। गो टू रैंडम पोजीशन, पोजीशन मतलब एक्स एंड वाई का वैल्यू आप गो टू मतलब एनी रैंडम पोजीशन पे अगर आपको आपके स्प्राइट को भेजना है तो यू कैन यूज दिस ब्लॉक। नेक्स्ट वन इज गो टू एनी स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट, दैट इज अगर आपको ओरिजिन पे भेजना है तो गो टू x0 y0। ठीक है, ग्लाइड, ग्लाइड इज वेरी सिंपल। ग्लाइड इज लाइक स्लाइड करना, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ग्लाइड आप देख सकते हो, ग्लाइड 1 सेकेंड टू x41 y-3। अब यहाँ पे टाइम है, मैं बोलूंगी मेरे कैट को स्लाइड कर 2 सेकेंड में। कहाँ पे? ओरिजिन पे 0,0 पे। इसका मतलब है ये 2 सेकेंड के लिए स्लाइड होगा और 0,0 पे जाके पहुंचेगा। देखेंगे अभी क्या होता है। ग्रीन फ्लैग पे क्लिक किया, तो ये ब्लॉक हो गया मोशन। अभी नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, इवेंट ब्लॉक हम लोग देखेंगे। आपको वो पता चल रहा है क्या कि ब्लॉक कौन सा किसके साथ कंपैटिबल है, जो मैं बोल रही हूँ वो सब? कैन आई आस्क यू सम क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट? विल यू आंसर? मैं उठाऊंगी ये ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक, और एक ब्लॉक दिस वन। अब गाइस मुझे बताइए, ये 3 ब्लॉक्स है। तो पहला क्वेश्चन मेरा, क्या ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है क्या? ये दोनों अटैच हो सकते हैं क्या ब्लॉक्स? दोनों ब्लू, एक लाइट ब्लू और थोड़ा डार्क वाला ब्लू, ये दोनों कंपैटिबल है? ओके, वन आंसर यस, अदर ओके। ठीक है, करके देखते हैं। ठीक है, हो रहा है ये, अटैच हुआ, गुड। इसका मैं आपको एक सिंपल बताती हूँ। यहाँ पे एक नॉच दिख रहा है आपको, जिस ब्लॉक के ऊपर ये नॉच है वो ब्लॉक आप इजीली उसके साथ अटैच कर सकते हैं। अब सिंपली यहाँ पे ये नीचे गया है, यहाँ पे ये थोड़ा ऊपर आया है, तो यू कैन अटैच दिस। यहाँ पे एक ब्लैक शैडो भी आपको दिखेगा। ठीक है, अगर वो आया इसका मतलब वो कंपैटिबल है। अब बताइए ये दोनों ब्लॉक्स के बारे में, क्या मैं ये ब्लू वाला ब्लॉक इसके ऊपर रख सकती हूँ? कैन आई प्लेस दिस ब्लू ब्लॉक अबाउट दिस? ओके, गुड गुड गुड। ठीक है, करके देखते हैं। ब्लैक शैडो क्रिएट हो रहा है? नो।
अगर मैं नीचे रखूं तो हो गया ये, ठीक है। इट्स लाइक मैग्नेट गाइस, जैसे आप लोग दो डिफरेंट पोल्स एक लाते हो तब वो अट्रैक्ट होते हैं, बस सेम वैसे ही जो ब्लॉक एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है उनका वो शैडो बनेगा, ठीक है। हम लोग अब आगे बढ़ते, इवेंट ब्लॉक, ठीक है। ये जो व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक था ये इवेंट ब्लॉक से था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक, ठीक है। नेक्स्ट वन अब हम लोग यहाँ से लेंगे ये व्हेन स्पेस कीज प्रेस्ड वाला ब्लॉक, ठीक है। नाम से आपको पता चल गया होगा, व्हेन स्पेस कीज प्रेस्ड, कीबोर्ड पे आपके जो स्पेस की है वो प्रेस होने के बाद क्या होगा, ठीक है। जैसे आप लोग गेम में देखते हो, जब आपका राइट यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन एरो है, जो जहाँ पे ये ड्रॉप डाउन एरो है उसके नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो अगर मैं राइट एरो की प्रेस की, व्हेन राइट एरो की इज प्रेस्ड, तब मेरा स्प्राइट राइट में जाना चाहिए। मैं इसको 90 में करती, ठीक है। राइट में जाना चाहिए, इसका मतलब क्या, वो मूव होना चाहिए राइट में, इसका मतलब मैं मोशन ब्लॉक में जाके मूव ब्लॉक उठाऊंगी। बट वो कितने स्टेप्स जाना चाहिए, मुझे सिर्फ 5 ही चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको, हाँ अब ये अब हाँ, अब मैंने ग्रीन फ्लैग क्लिक करने के बाद ही ऐसा नहीं बोला इसको, ठीक है। व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड, व्हेन राइट एरो की इज प्रेस्ड, व्हेन मूव, ऐसा देन मूव, ऐसा नहीं है। तो अगर मैंने ग्रीन फ्लैग पे क्लिक भी नहीं किया तो भी ये मूव होगा, देखते करके। मैं अभी राइट एरो की प्रेस कर रही हूँ, ये जा रहा है राइट में, ठीक है। सेम फॉर लेफ्ट, अप, डाउन, कुछ भी आप कर सकते हो उसके साथ, ठीक है। ऐसे इवेंट में बहुत सारे ब्लॉक्स है। व्हेन द स्प्राइट क्लिक, जब ये मैं स्प्राइट पे क्लिक करूँ तब ये रोटेट हो, ऐसा कुछ भी आप कर सकते हो। व्हेन बैकड्रॉप स्विचेस टू, अगर बैकग्राउंड आपको स्विच करना है तब, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है इवेंट में, ठीक है। आई होप जब हम लोग गेम बनाएंगे तब आपको सबका एप्लीकेशन पता चल जाएगा। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज कंट्रोल, ठीक है। कंट्रोल ब्लॉक हम लोग देखते हैं अभी। आप लोगों को लूप्स पता होगा, लूप्स क्या होते हैं, आईटी बैकग्राउंड, लूप्स, कंडीशनल, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी प्रोग्राम या गेम के लिए, ठीक है। हम लोग अब वो देखेंगे। लूप नाम से पता चलता है, कंसिडर करो आप लोग गार्डन में बैठे हो एक सर्कल में, कोई तो गेम खेल रहे हो, तो अगर आप काउंटिंग स्टार्ट करो कोई भी पर्सन से तो वो कभी खत्म नहीं होगा, वो राउंड कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है। लूप मतलब वो हमेशा चलेगा, उसका एंड नहीं है, ना स्टार्टिंग है ना एंड है, ठीक है। वो हम लोग देखेंगे अभी क्या है। सो नाम से, ये भी आपको नाम से पता चल जाएगा। फर्स्ट इज रिपीट 10, 10 इज रिपीट 10 टाइम्स, ठीक है। अगर कोई भी एक्शन मुझे रिपीट करवाना है अपने स्प्राइट से तो आप लोग ये यूज कर सकते हो। लाइक अभी मैं बोलूंगी रिपीट 5 टाइम्स, वो 5 स्टेप्स मूव करे, मतलब ये क्या होगा, पहले मूव किया 5 स्टेप्स, देन वो रिपीट किया 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, मतलब ये 5 into 5 स्टेप्स मूव होगा। ये करके देखते हैं। व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक, ठीक है, मूव हुआ, ये वापस ग्रीन फ्लैग क्लिक, वापस मूव हुआ, ठीक है। जैसे रिपीट ब्लॉक है वो 5 स्टेप्स बाद रुक रहा है, ठीक है। अब मैं फॉर एवर यूज करूंगी, ठीक है। फॉर एवर इज नेवर एंडिंग लूप, मतलब ये क्या होगा, अपना स्प्राइट हमेशा चलते रहेगा जब तक हम लोग ये स्टॉप बटन नहीं दबाते या जब तक ये खत्म नहीं होता विंडो, ठीक है। चला गया अपना स्प्राइट, कूल। सेम इसी ब्लॉक में और भी है इफ कंडीशन, ये हम लोग आगे देखेंगे। इफ कंडीशन है जब ये होगा तब क्या होगा, इफ एल्स है, वेट अंटिल है, रिपीट अंटिल है, आप लोग स्टॉप भी कर सकते हो। जो ये रेड बटन करता है वो सेम ये ब्लॉक करता है, स्टॉप वाला, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे आगे। नेक्स्ट ब्लॉक है सेंसिंग ब्लॉक। नाम से आपको पता चल गया होगा कि अपने कंप्यूटर्स के सेंसर्स से रिलेटेड ये ब्लॉक है। लाइक माउस, कीबोर्ड, दीज ऑल आर सेंसर फॉर आवर कंप्यूटर, सो उनका यूज करके मैं जाती हूँ अभी सेंसिंग ब्लॉक में। अभी एक और चीज नोटिस करने लायक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक जगह है बट इसका शेप कुछ अलग दिख रहा है, ठीक है। नॉर्मल नहीं है ये शेप, बट वो शेप हमें सेंसिंग ब्लॉक में मिल रहा है, ठीक है। ये सेम शेप दिख रहा है आपको, और आप जब इसके पास लेके जाएंगे तब यहाँ पे एक व्हाइट लाइन भी दिख रहा है, मतलब ये वाला ब्लॉक इधर बैठ सकता है, ठीक है। हो गया, इसका मतलब क्या होगा, और एक बात, ये ड्रॉप डाउन एरो है, इसका मतलब और भी ऑप्शंस होंगे यहाँ पे, जैसे कि एज, ठीक है। मैंने एज क्लिक किया, एज होता क्या है, स्टेज विंडो का जो भी बॉर्डर है उसको हम लोग एज बोलते हैं,
ठीक है, अगर अपना स्प्राइट टच कर रहा है एज को तो क्या होना चाहिए? मैं बोलूंगी ये अभी फॉरएवर में ये मूव हो रहा है, बट मूव होते होते अगर वो एज को टच किया तब मैं बोलूंगी इसको कि तू रोटेट कर 90 डिग्री से। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगी 90 डिग्री। ओके, देखते हैं अब क्या होगा। अब हमें अब अपना एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है? ये चलते रहना चाहिए, जब एज आएगा तब ये 90 डिग्री से रोटेट हो। क्लिक ऑन ग्रीन फ्लैग, हुआ रोटेट। जब एज मिल रहा है उसको तब वो 90 डिग्री से रोटेट हो रहा। हम लोग इसको स्टॉप करेंगे, नॉर्मल। ठीक है, ऐसे सेम बहुत सारे ब्लॉक्स है सेंसिंग में। टचिंग कलर, अगर अपना स्प्राइट कोई भी कलर को टच कर रहा है तब आपको कुछ एक्शन करना है। जब कोई कलर किसी और कलर को टच कर रहा है तब क्या करना है। फिर ये हम लोग आगे देखेंगे। अगर स्पेस की प्रेस हुआ तो क्या करना है, जैसे हम लोगों ने अभी देखा व्हेन स्पेस की प्रेस, वो सेम काम ये भी कर सकता है इफ के अंदर अगर आप ये डालोगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं इसमें भी सेंसिंग में। नेक्स्ट ब्लॉक, साउंड एंड लुक्स ब्लॉक। ठीक है, ये दोनों मैं साथ में बताऊंगी आपको। ठीक है, यहाँ पे वो ब्लॉक साउंड ब्लॉक। ठीक है, अभी अपना स्प्राइट है कैट, तो ऑब्वियसली उसका साउंड होगा म्याऊ। ठीक है, मुझे चाहिए, हाँ, अपना कैट हमेशा म्याऊ करता है ये मुझे चाहिए। तो व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड फॉरएवर ब्लॉक, मैंने उसमें डाल दिया प्ले साउंड म्याऊ अंटिल डन ब्लॉक। फिर साउंड में बहुत सारे ऑप्शंस है, स्टार्ट साउंड म्याऊ। अभी यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो, इसका मतलब इसमें बहुत सारे साउंड्स होंगे। ठीक है, फिर स्टॉप कर सकते हो, चेंज पिच उसका चेंज कर सकते हो, सेट कर सकते हो, साउंड क्लियर भी कर सकते हो, वॉल्यूम बढ़ाना है कम करना है, किस परसेंटेज से कम करना है बढ़ाना है वो भी। ठीक है, नेक्स्ट वन लुक। लुक मतलब जो भी आपकी आंखों को दिखेगा, डिस्प्ले जो भी होगा वो। ठीक है, मैंने आपको कॉस्ट्यूम का बताया, तो कॉस्ट्यूम अगर चेंज करना है गेम में ही आप स्विच कर सकते हो कॉस्ट्यूम, उसके लिए ये आप लोग यहाँ पे अगर आपको कुछ मैसेज डिस्प्ले करना है तो यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, से हाँ, मैं यहाँ पे बोलूंगी हेलो वर्ल्ड बोलेगी, जब ये म्याऊ कहेगी तब ये हेलो वर्ल्ड भी बोलेंगी। गाइस प्लीज कवर योर ईयर्स, वी विल रन दिस प्रोग्राम। ठीक है, ये चिल्ला रही है म्याऊ और हेलो वर्ल्ड मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। cool. We will stop this. ठीक है, इसमें भी बहुत सारे हैं। से हेलो फॉर कितने सेकंड के लिए, मैं यहाँ पे टाइम भी एडिट कर सकती हूँ। खाली से हेलो थिंक, अगर आपको चाहिए कि स्टोरीज में ये यूज हो सकता है, किसी ने क्वेश्चन पूछा, आप कोई तो सोच रहे हो उसके लिए, क्वेश्चन का मैंने आपको बता दिया। से ठीक है, नेक्स्ट है वेरिएबल ब्लॉक। अभी मैंने आपको बताया था पहले 7 जो है वो प्राइमरी है और बाकी के 2 कस्टमाइजेबल है, तो हम लोग उसमें से वेरिएबल देखेंगे। बहुत सारे गेम में होता है स्कोर, स्टार्टिंग में आपका 0 होता है, उसके बाद वो अगर आपने कुछ पॉइंट्स अर्न किए तो वो बढ़ता है, या किसी को गोली मारा जो भी है, तो वो हम लोग यूज कर सकते हैं वेरिएबल से। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है मेक अ वेरिएबल। अभी मैं स्कोर नाम का ही वेरिएबल बनाऊंगी, वहां पे क्लिक करो, यहाँ पे स्कोर नाम से एक वेरिएबल बनाओ। ओके, यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है स्कोर अभी 0 है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जब अपनी कैट हेलो वर्ल्ड बोल रही है तब मुझे 1 से वो स्कोर बढ़ाना है। चेंज नॉट माय वेरिएबल, चेंज स्कोर बाय 1। ठीक है, मैं रन करूंगी, हेलो वर्ल्ड बोली, स्कोर 1 से बढ़ा। ठीक है, अब मैं वापस रन करूंगी, स्कोर 1 ही है। ठीक है, 1 से बढ़ रहा है, बट मुझे क्या होना, जब मैं ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करूँ तब स्कोर 0 हो। इसका मतलब मैं सेट करूंगी स्कोर टू 0। जब ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करूँ तब अभी स्कोर 2 है, ग्रीन फ्लैग पे क्लिक किया 0, हेलो बोला 1। ठीक है, ये गेम में बहुत ज्यादा यूज होगा। ये हो गया वेरिएबल से रिलेटेड। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम सबको पता है, मैं आगे बढ़ती हूँ। ब्रॉडकास्ट, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अभी आप लोग यहाँ पे देखिए, ये 3 ब्लॉक्स ही है ब्रॉडकास्ट के लिए, वो हम लोग उधर करके देखेंगे। मैं सबको हटा देती हूँ।
ठीक है, अभी मुझे चाहिए अपना कैट। एक और मैं स्प्राइट लेती हूँ, दो स्प्राइट में हम लोग कन्वर्सेशन करवाएंगे। ये लेडी मैं लेती हूँ। ठीक है, अब ये दोनों इस साइड में फेस कर रहे हैं, मुझे चाहिए कि अपना कैट इधर ही रहे और ये लेडी कैट की तरफ फेस करे। मतलब मैं क्या करूंगी, इसको रोटेट करूंगी, फ्लिप करूंगी और फिर ये साइड में उसको टर्न करूंगी। ठीक है, अब ये दोनों कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बट वो कैसे करेंगे? सबसे पहला मेन टास्क कैट में, व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक, तब कैट बोलेगी, कैट डिस्प्ले करेगी हेलो लेडी। ठीक है, और ये वाला मैसेज वो ब्रॉडकास्ट करेगी। उस ब्रॉडकास्ट को हम लोग उस मैसेज को हम लोग नाम भी दे सकते हैं। फिलहाल मैं दूंगी कैट टू लेडी। ठीक है, अब मैं लेडी के इसमें लेडी के स्प्राइट में जाऊंगी। यहाँ पे आपको दिख रहा है स्प्राइट, जिस स्प्राइट में आप जाओगे तब ऊपर वो ट्रांसपेरेंट आपको दिखेगा कौन से स्प्राइट में हो। ठीक है, लेडी में गई। अब यहाँ पे ब्लॉक है व्हेन आई रिसीव कैट टू लेडी। हम लोगों ने मैसेज को नाम क्या दिया था? कैट टू लेडी। ठीक है, जब लेडी को ये मैसेज मिलेगा तब लेडी क्या बोलेगी? हेलो, हेलो कैट। और ठीक है, इतना देखते हैं करके। कैट बोली हेलो लेडी, जब ये मैसेज लेडी को मिला वो बोली हेलो कैट। क्या इंटरेस्टिंग है। अब आप वैसे आप इन दोनों में कन्वर्सेशन करवा सकते हो वापस। कुछ तो लेडी ब्रॉडकास्ट करेगी सेम जैसे कैट का किया था हम लोगों ने, फिर कैट कुछ तो रिप्लाई देगी। ठीक है, ब्रॉडकास्ट सबको क्लियर है? गाइस, ब्रॉडकास्ट क्लियर है सबको? ओके, आप करके देखिए, तब आपको और प्रैक्टिस होगा उसका। ठीक है, बाद में है यूजर इनपुट। ये बहुत ज़्यादा सी या C++ में लोगों को बहुत ज़्यादा इसका प्रॉब्लम होता है कि यूज़र से इनपुट लो और फिर उस पर कुछ तो एक्शन करो। ठीक है, बट यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। हम लोग जाएंगे सेंसिंग वाले ब्लॉक में, आपको दिखेगा आस्क अ क्वेश्चन। सॉरी, ये अभी मैं ये लेडी को हटा देती हूँ, एक ही स्प्राइट अपना कैट। व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक, तब कैट विल आस्क अस क्वेश्चन व्हाट्स योर नेम। ठीक है, करके देखते हैं क्या बोलती है कैट। ग्रीन फ्लैग इज क्लिक, कैट ने पूछा है व्हाट इज योर नेम। अब मैं रिप्लाई दूंगी उसको। ठीक है, अब ये उसको पता चला मेरा नाम क्या है, बट हमें नहीं पता है कि कैट को ये मैसेज मिला है या नहीं, तो वो हमें डिस्प्ले हो सकता है ये आंसर से। बट आप आंसर कैन आई स्टिक दिस आंसर ओवर हियर? इज इट पॉसिबल? No. Okay, we want to display this, so we will drag this block, say answer for 2 seconds. Yeah, करके देखते हैं। ग्रीन फ्लैग इज क्लिक, मैंने बोला मेरा नाम, उसने वो डिस्प्ले किया। ठीक है, आप इससे कैट को मूव भी करा सकते हो, वो भी मैं जल्दी में आपको दिखा देती हूँ। हाउ मेनी स्टेप्स शुड आई मूव, फिर जो भी हम लोग आंसर देंगे उतना स्टेप वो, सॉरी से नहीं, उतना स्टेप्स वो मूव करेगी। ठीक है, अभी यहाँ पे 10 स्टेप नहीं करेगी, जो भी हम लोग आंसर देंगे उतना स्टेप वो मूव करेगी। सेंसिंग में गए, आंसर। ठीक है, हाउ मेनी स्टेप शुड आई मूव, मैं बोली 10 स्टेप। अब वो कैट मूव होगा। ठीक है, मैं और ज्यादा उसका वैल्यू बढ़ाती हूँ 50। ठीक है, ये मूव होता है। ऐसे आप लोग इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। एडिंग साउंड इफेक्ट, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 है क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, और ये है लास्ट वाला साउंड। ठीक है, इसमें भी सेम 4 ऑप्शन होते हैं जैसे स्प्राइट और बैकड्रॉप में थे। यू कैन चूज साउंड फ्रॉम साउंड लाइब्रेरी, देयर आर टू मेनी साउंड्स। ठीक है, second is you can record, you cannot paint your sound, so you have to record that. Third one is surprise, you can choose any random sound from the library, and last one, you can upload any sound of your choice from your computer. Okay, I hope you are all are clear with all the concept. Okay,
Now I'll hand over this to Mr. Paresh. 1 second. Thank you, Mrunal, for your wonderful presentation. Great. So we'll start our game, ping pong game. First, I will show you the demo. कैसा game कैसा दिखता है, और you can observe some things. Like I will be asking you some questions based on that. तो ध्यान से देखो game कैसा है. So this is your game. A ball at the center. One paddle, we call it paddle. The green one you are seeing. Right one, right. One paddle at the right side and one paddle at the left side. ठीक है. तो मैं प्ले करता गेम. शायद इंटरनेट स्पीड की वजह से आप लोग रियल टाइम में नहीं देख पाओगे, बट इट्स फेयर, ठीक है. लेकिन मतलब आपको गेम दिख रहा है. You can see what game we are trying to develop here using Scratch. Score is increasing. Right side वाला computer pedal है, means it is controlled by our CPU, and left is our player. ठीक है. आप देख सकते हो वो जो माउस का जो Y पोजीशन है उसको फॉलो कर रहा है लेफ्ट वाला पैडल. ठीक है. तो ये वाला गेम हम लोग डेवलप करेंगे. जैसे ही बॉल प्लेयर से मिस होता है, देन इट विल बी ए गेम ओवर. ओके. सो we'll start with the game development. Okay, so here we are at our Scratch block. I will delete everything. हाँ, I want to tell you one thing that जब हम लोग इंस्टॉलेशन बता रहे थे स्क्रैच का, ठीक है, तो scratch.mi.edu. ठीक है. सो यू हैव टू ऑप्शंस हियर. मतलब आप ज्वाइन भी कर सकते हो जहाँ पे आपने अभी अकाउंट बनाया. ठीक है. और सेकंड थिंग इज यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग, मींस इट्स एन इंस्टेंट वन. मतलब अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो लाइक we will instantly go to scratch page जिसमें आप लॉगिन नहीं हो, बट यू कैन क्रिएट समथिंग. ओके. So this is our scratch page. Here we have our sprite. You already know. I will delete this sprite. So tell me that how many sprites were there when I show you the game demo? Yeah, the correct answer is 3. That is, one sprite was the ball, other was the paddle, computer paddle, and another one was the player paddle. Okay, so total there were 3 sprites. Or and the ball was moving randomly from one place to another. Computer paddle was used to hit the ball, and player was also trying to hit the ball. Okay, once the player misses the ball, the game is over. So this is the game. We will try to develop that game using Scratch. So let's start. So first, before starting the game, I would like to give it a like small recap that what we learned till now. That you already know about the code, like these blocks of code, how to use them, how they can be rearranged. हम लोग किस ब्लॉक के नीचे कौन से ब्लॉक को ज्वाइन कर सकते हैं और उनसे क्या क्या हो सकता है. ठीक है. हम लोगों ने स्प्राइट को देखा, स्प्राइट को चूज कैसे करते हैं. लाइक दिस स्प्राइट लाइब्रेरी, you can have a lot of options here. Sprite library hai. Then you can also paint your own sprite. Similarly, backdrop की भी library है. Backdrop in the sense background. ठीक है. Backdrop की library है. And then you can just rearrange different blocks to play with your own. It's very simple. Okay. So हम लोग start करते game development. First I will choose the sprite. That is, I will choose the ball. पहला sprite हमारा. Second, I also need my paddle. तो I will scroll a bit. देखते. हाँ, this is paddle. ठीक है. Since I need 2 paddles, I will duplicate it here. I will right click on it. You get an option of duplicate. I will duplicate it. Okay. So we have paddle 2 and a ball. So I will rename this. You can rename your sprite right here. I will say player sprite or player paddle. Right.
This one is our computer pedal. Great. Now we can add a backdrop from our backdrop library. Let's see which one we can select. This wall looks better. We'll take this. Great. So guys, आप देखो कि like पैडल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, बट हमने जो गेम डेमो में देखा था इट वेर इन वर्टिकल, दे वेर इन वर्टिकल डायरेक्शन. सो हम लोग इनको पहले डायरेक्शन चेंज कर देते हैं. So let's change the direction to 0. You see the pedal is in vertical direction now. Similarly for computer pedal, let's change the direction to 0. Let's just switch it. This is our computer pedal and this is our player pedal, right? So computer on the right side, player on the left side. I need to change the color of the ball. Means I want to change the color of the ball. Let's take it. So this will be our ball. You can have different color, or you can write text over it. You can edit in various steps. ठीक है, तो आपको जो करना है, आप जितना क्रिएटिव बन सकते हो आप बन सकते हो यहाँ पे. So I will not waste much of the time. I will select this ball. We have this pedal. We have this computer pedal, right? So we will start with the ball. As you already know कि जब हमारा गेम तब स्टार्ट होना चाहिए जब हम लोगों ने ग्रीन फ्लैग क्लिक किया. ठीक है, अभी मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक कर रहा, नथिंग इज हैपनिंग. सो विल स्टार्ट विद इट. I will start with the event when green flag is clicked. ठीक है, and I want my ball to move when the game starts. ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि like move steps. ठीक है, जब मैं ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करता तब मेरा बॉल मूव होता. ठीक है, in which direction? In 90 degree direction. Okay, because 90 degree direction is already selected. ठीक है, that's cool. Now अब ये बस एक ही बार मूव हो रहा है. सो आई वांट इट टू मूव फॉरएवर, सो आई विल यूज द फॉरएवर ब्लॉक. ठीक है, फॉरएवर ब्लॉक में मूव डालेंगे. ठीक है, लेट्स प्ले, देखते क्या चेंजेस हुए. या मूव तो हो रहा है. लाइक आई विल स्टॉप, ब्रिंग इट बैक, अगेन स्टार्ट. या इट्स मूविंग. ओके, सो आई वांट माय बॉल to bounce back from the wall. So we already know we have one block known as if on edge bounce. ठीक है, ऑन इन मोशन ब्लॉक्स. ठीक है, हम लोग इसको उठाएंगे और यहाँ रख देंगे. लेट्स सी व्हाट चेंजेस इट मेक्स. यो, द बॉल इज बाउंसिंग फ्रॉम द एजेस. ठीक है, दैट्स कूल. सो बट हैव यू गाइस ऑब्जर्व कि ये बॉल पैडल्स को पास कर रहा है. ठीक है, पैडल्स से टच होके वापस नहीं आ रहा. सो फर्स्ट वी विल राइट दैट कंडीशन कि अगर पैडल को टच हुआ तो बॉल शुड बी बाउंस बैक. ठीक है, तो फॉर दैट वी कैन यूज लाइक इफ कंडीशन. कि मैं बोल सकता ना कि इफ इट टचेस द पैडल देन द बॉल शुड टर्न बाय 1 डिग्री, राइट? तो मैं वी नीड वन इफ एल्स ब्लॉक राइट हियर. सो मैं जाऊंगा इफ एल्स ब्लॉक. ठीक है, हाँ, टच क्या सेंस करना है हमें? टच ऑफ द बॉल, राइट? तो हम लोग सेंसिंग में जाएंगे. सेंसिंग में टच आई विल चूज पैडल 1, नहीं कंप्यूटर पैडल. ठीक है, सो व्हेनेवर इट टचेस टू कंप्यूटर पैडल, ठीक है, द बॉल शुड टर्न बाय 180 डिग्रीज, राइट? इट शुड टर्न बाय 180 डिग्रीज. ठीक है, आई विल एड दिस ब्लॉक इनसाइड दिस फॉरएवर ब्लॉक. ठीक है, ये देखो आप ऐसा नहीं कर सकते कि लाइक ये फॉरएवर के नीचे इसको ऐड कर दिए या फिर ऐसे इसके ऊपर ऐड कर दिए. ठीक है, ये इसके ऊपर ऐड कर दिए तो वो एक ही बार कंडीशन चेक होगी. ठीक है, सो अगर आप चाहते कि हमेशा ही वैसा हो तो आपको ये फॉरएवर ब्लॉक के अंदर ऐड करना पड़ेगा, राइट? सो बी केयरफुल विद द लूप्स गाइस, कि मतलब फॉरएवर कौन से ब्लॉक के अंदर कौन सा ब्लॉक आना चाहिए. यू डोंट हैव टू मेस विथ इट. ओके, हाँ, और एक बात बतानी रहेगी आपको लोगों को कि जैसे अभी हमारा व्हेन फ्लैग क्लिक के नीचे का ब्लॉक है. ठीक है, फॉरएवर ब्लॉक. जब मैं फ्लैग क्लिक करता it doesn't execute this block. ठीक है,
वो बस ये वाले ब्लॉक ही एग्जीक्यूट करेगा बिकॉज इट इज अंडर दिस व्हेन फ्लैग क्लिक बटन। ऑल्दो कि ये वाला ब्लॉक भी हमारा कोडिंग एरिया में प्रेजेंट है, बट इट डजंट मीन कि ये भी ब्लॉक रन होगा, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल वी पुट दिस ब्लॉक इन आवर मेन ब्लॉक कोड, तब तक ये रन नहीं होगा, ठीक है। सो वी हैव दिस टिल नाउ कि हमारा जब कंप्यूटर पैडल को टच कर रहा है बॉल तो इट बाउंसेस बैक, और अगर इसको नहीं टच कर रहा, बॉल को टच कर रहा, स्टिल इट बाउंसेस बैक, ठीक है। सो नाउ सिमिलरली आई वांट माय बॉल टू बाउंस बैक जब मेरा बॉल प्लेयर पैडल को टच करे, राइट, दिस वन, इसको टच करे तब आई वांट माय बॉल टू बाउंस बैक, ठीक है। तो आई विल स्टिल कोड इट हियर, say similar thing, if block I will use this touching, and this time I will put it here and use what, player pedal, right. So player pedal I will stick it here, and also I want it to turn by 180 degree, similar thing कि मतलब वो बाउंस बैक हो जाए वहां से, ठीक है। सो वी विल ट्राई आफ्टर, हम जब ये ब्लॉक ऐड कर रहे हैं तो उसके बाद एक बार ट्राई करके देखते हैं, इज इट हैपनिंग और नॉट। या इट इज बाउंसिंग बैक फ्रॉम प्लेयर पैडल, ठीक है। अगर ये नहीं रहता तो हमारा एज से बाउंस हो रहा है, ठीक है। कूल, वी आर समवेयर देयर। नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि लाइक ये बस कंटिन्यूअस बाउंस ना होते रहे, ठीक है। आई वांट दैट बॉल टू बाउंस इट फ्रॉम बाय रैंडमली, लाइक हमेशा 180 डिग्री से बाउंस होगा तो गेम करने का मतलब ही क्या है, डिफिकल्टी नहीं रहेगा। सो हम लोग ट्राई करेंगे थोड़ा सा डिफिकल्टी ऐड करने का। सो हम लोग ये ऑपरेटर्स में रैंडम ब्लॉक है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ टर्निंग बाय 180 डिग्री हम लोग ट्राई करेंगे थोड़ा सा रैंडमली टर्न हो, मतलब बाय सम, कभी कभी 150 डिग्री से, कभी कभी एग्जैक्टली 1 डिग्री से, कभी कभी 200 डिग्री से, ठीक है। सो आई विल ट्राई टू राइट सम रैंडम वैल्यूज इन द रेंज 150 टू लेट्स से 210, ठीक है। तो रादर देन एग्जैक्ट 1 डिग्री टर्न करने से अच्छा हम लोग ट्राई करेंगे कि ये इस रेंज में टर्न हो, ठीक है। तो यू कैन सी द shape matches with this, so it will accept this, right. Similarly for player pedal we also want the same 150 से 210, ठीक है। इसको मैं यहाँ डाल दिया, let's see what changes does it make। हमने ये कोड चेंज करने के बाद हमारे गेम में क्या चेंज हुआ, ठीक है। स्टार्ट कर रहा मैं, you can see the ball is moving quite randomly, so this makes our game quite interesting, ठीक है। अभी हमको अगर बॉल को हिट करना है तो हमारा पैडल को मूव करना पड़ेगा, ठीक है। सो गुड, वी कैन ऑल्सो इंक्रीज द रैंडमनेस और डिक्रीज द रैंडमनेस, लाइक आई कैन से इट फॉर 140 डिग्री एंड इंक्रीज हियर टू 20 डिग्री, यू कैन प्ले विद दैट, ठीक है। सो अभी रैंडमनेस तो ऐड हो गया। नाउ थिंग इज कि हमको कंप्यूटर पैडल कोड करना चाहिए, लाइक ये बस स्टेशनरी है ना पैडल्स दोनों, सो विल ट्राई टू मूव दैट पैडल, ठीक है। ये भी बहुत इजी है ये वाला चीज भी, कि लाइक हमको पैडल मूव कब करना है, जब हमारा गेम स्टार्ट हो, और हमारा गेम स्टार्ट कब हो रहा है, जब हमारा ग्रीन फ्लैग क्लिक हो रहा है, राइट। सो विल ऐड फर्स्ट ग्रीन फ्लैग क्लिक बटन, ठीक है। इसके बाद हम चाहते हैं कि लाइक फॉरएवर के लिए हमारा राइट वाला पैडल है वो मूव करता रहे, और कहाँ मूव करता रहे, बॉल के अलग मूव करता रहे, ठीक है। सो फर्स्ट आई वांट फॉरएवर ब्लॉक, ठीक है। फॉरएवर ब्लॉक को रखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। सो मुझे ये नहीं चाहिए कि मेरा कंप्यूटर पैडल ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव करे, ठीक है। उसको आगे नहीं आना है, उसको बस वर्टिकली मूव करना है टू हिट दी बॉल, ठीक है। अगर वो वर्टिकली हिट कर रहा है मतलब आई नीड टू सेट वाई पोजिशन ऑफ पैडल, राइट। अगर मैं उसकी वाई पोजिशन सेट करूँ हर बार, ठीक है, तो वो हमेशा वर्टिकली मूव करेगा। तो आई नीड टू गेट दिस ब्लॉक सेट वाई टू, ठीक है। सेट वाई टू व्हाट, ठीक है, मतलब जहां मेरा बॉल, जो मेरी बॉल की वाई पोजीशन है वो मेरी कंप्यूटर पैडल की वाई पोजीशन होनी चाहिए,
तभी हमारा पैडल और बॉल हमेशा टकराएंगे, मतलब हमेशा हिट करेंगे। ठीक है, सो जो जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि बॉल की ये पोजीशन है, सो पैडल की भी ऐसी पोजीशन होनी चाहिए, मतलब बॉल की वाई पोजीशन जो है वो पैडल की वाई पोजीशन होनी चाहिए, राइट? सो आई विल ट्राई दैट, I will stop the game. I will try that. Go to sensing blocks and get this block. ठीक है, backdrop of stage. You have a lot of options here. ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि पैडल की हम लोग y पोजीशन सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ बॉल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे y पोजीशन, और ये इसमें इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये ब्लॉक क्या बन गया, सेट y पोजीशन टू y पोजीशन ऑफ बॉल। ठीक है, हम लोग कोड क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर पैडल कर रहे हैं, राइट? यू कैन सी इट हियर, कंप्यूटर पैडल सिलेक्टेड। ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि कंप्यूटर पैडल मतलब जैसे ही गेम स्टार्ट हो तब कंप्यूटर पैडल की पोजीशन क्या हो, वाई पोजीशन क्या हो, इक्वल्स टू वाई पोजीशन ऑफ बॉल, राइट? आई विल पुट इट हियर। ठीक है, अब देखते क्या होता है इससे। लेट्स प्ले। यू कैन सी कि बॉल कहीं भी मूव हो रहा है, हमारा राइट वाला पैडल उसकी हमेशा वाई पोजीशन नोट कर रहा है और वो उसके अकॉर्डिंग मूव हो रहा है। देखो, बॉल जहां जहां जा रहा है, जहां जहां उसकी वाई पोजीशन है, वहां वहां पैडल की भी वाई पोजीशन है। समझ रहा है? आई विल रिपीट इट वंस अगेन, जिनके लिए अगर फास्ट हो गया होगा तो। ठीक है, वी टेक दिस व्हेन फ्लैग क्लिक बटन। ठीक है, हमें फॉरएवर के लिए करना है वो लूप, मतलब हमेशा चलाना है, तो वी विल ऐड फॉरएवर ब्लॉक। ठीक है, फॉरएवर ब्लॉक में हम लोग क्या क्या चेंज कर चाहते हैं कि लाइक हमको चाहिए कि हमारा पैडल की वाई पोजीशन इक्वल्स टू बॉल की वाई पोजीशन हो। ठीक है, तो हमारी पैडल की वाई पोजीशन के लिए हम लोग सेट वाई टू करेंगे, सेट वाई टू उठाएंगे और सेंसिंग से ये वाला ब्लॉक, ठीक है, ऑफ वाला, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है, लाइक वी विल सिलेक्ट बॉल एंड सिलेक्ट वाई पोजीशन, राइट? वी विल इंसर्ट इट हियर एंड यू विल इंसर्ट इट हियर। ठीक है, तो हमारा जो पैडल की वाई पोजीशन है वो हमारे बॉल की वाई पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, यू कैन सी इट। ठीक है, जितने आप एक्सपेरिमेंट करोगे, जितनी नई नई चीजें आप ट्राई करोगे, उतने नई नई चीजें आपको मिलेगी। ठीक है, ये और भी तरीके से हो सकता है, बट इट इज द सिंपलेस्ट वे आई एम टेलिंग यू टू मेक द कंप्यूटर पैडल। ठीक है, सो हमारा कंप्यूटर पैडल तो मूव कर रहा है, बॉल अच्छा मूव कर रहा है, सो नाउ वी वांट आवर प्लेयर पैडल टू मूव। ठीक है, सिमिलरली मींस सेम थिंग वी विल डू हियर, वी विल ऐड इवेंट्स ब्लॉक व्हेन फ्लैग क्लिक। ठीक है, प्लेयर पैडल हमें चाहिए कि जैसे हमारा माउस कर्सर ऊपर जाए और नीचे जाए वैसे प्लेयर पैडल मूव हो। ठीक है, ठीक है, और उसको भी हमें वर्टिकल डायरेक्शन में ही मूव करना है, नॉट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, राइट? सो हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में मतलब वाई पोजीशन चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू वाई पोजीशन ऑफ माउस। वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड अवर हाफ गेम। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग प्लेयर पैडल को कैसे कोड कर रहे हैं। ठीक है, व्हेन फ्लैग क्लिक एज यूजुअल हम लोग यहाँ पर भी फॉरवर्ड ब्लॉक डालेंगे। ठीक है, और हम लोग चाहते कि उसकी वाई पोजीशन सेट हो सिमिलर टू दैट कंप्यूटर पैडल। हम लोग वाई पोजीशन निकालेंगे, सेट वाई पोजीशन 2। ठीक है, और वाई पोजीशन टू व्हाट, along with y position of mouse, okay, not the x position or completely mouse. ठीक है, so moving forward, set y to sensing. You can see here you have this mouse y block here. ठीक है, mouse y, ये स्क्रैच डेवलपर्स ना बहुत बहुत कमाल के लोग हैं, मतलब उन लोगों ने सही सही ब्लॉक्स ऐड करके रखे हैं, दैट मेक्स आवर कोडिंग वेरी इजी। मतलब हमको सारी चीजें कोड करने की जरूरत नहीं है, बस हमको ब्लॉक उठाना है, प्लेस करना है एंड वी आर डन। इट्स क्वाइट सिंपल। ठीक है, सेट वाई टू वाई माउस, लेट्स सी, प्ले करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, जस्ट ऑब्जर्व माई माउस पोजिशन एंड दी प्लेयर पैडल पोजिशन। ठीक है, आई विल स्टार्ट।
देखो जहां मेरा माउस जा रहा है ना वहां मेरा पैडल जा रहा है। ठीक है, कूल। सो हमारा बेसिक जो स्ट्रक्चर है गेम का वो तो रेडी है अभी तक, कि मतलब द बॉल इज मूविंग, कंप्यूटर पैडल उसको हिट कर रहा है, प्लेयर पैडल माउस के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है एंड वो भी हिट कर रहा है, राइट। सो आई स्टॉप हियर। हाँ, तो अभी क्या होना चाहिए, लाइक वी वांट टू ऐड ए स्कोर। ठीक है, हमको स्कोर बोर्ड ऐड करना है। तो कब इंक्रीज करना चाहिए हमको स्कोर? व्हेन इट हिट्स द प्लेयर पैडल। ठीक है, सो वी विल डू द सेम थिंग। हम लोग बॉल वाले कोड में जाएंगे। यू कैन सिलेक्ट इट हियर एंड यू कैन वेरीफाई इट फ्रॉम हियर कि वो बॉल इज सिलेक्टेड। सो बॉल में जाएंगे, हम लोग को इफ चाहिए, इफ स्टेटमेंट चाहिए कि इफ अगर वो बॉल हमारा प्लेयर पैडल को टच करे तो स्कोर इंक्रीज हो। ठीक है, सो बिफोर दिस आई विल मेक ए वेरिएबल, हमारा स्कोर वेरिएबल। ठीक है, स्कोर। ठीक है, सो यू कैन सी हियर आवर स्कोर वेरिएबल इज एडेड। और इसको मैं एट द स्टार्ट ऑफ द गेम आई वांट टू इनिशियलाइज इट टू 0, कि जब हमारा गेम स्टार्ट हो तो आई वांट टू सेट इट एट 0। ठीक है, तो मैं फॉर एवर के ऊपर, ठीक है, जब हमारा गेम स्टार्ट होता है तो इसको स्कोर को 0 सेट कर रहा है। ठीक है, डन। नाउ आई वांट टू ऐड ए कंडीशन, कि कंडीशन, अच्छा हमारे पास कंडीशन पहले से है, देखो इफ टचिंग प्लेयर पैडल। ठीक है, जब भी बॉल प्लेयर पैडल को टच कर रहा है तब हमें स्कोर इंक्रीज करना है। वी विल चेंज दी स्कोर बाय 1। ठीक है, लेट्स प्ले इट वंस, कि मतलब हो रहा है कि नहीं, कि जब हमारा बॉल प्लेयर पैडल को टच कर रहा है तो वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेट्स प्ले। देखो मैं प्लेयर पैडल को टच नहीं किया अभी तो स्कोर इंक्रीज नहीं हुआ। एज सुन एज इट टचेस, हाँ, स्कोर इज इंक्रीज बाय 1, अगेन 2, 3, दैट्स कूल। ठीक है, सो इट्स वेरी इजी। ठीक है, इन प्रोग्रामिंग इन स्क्रैच हम जो चाहे वो लाइक ब्लॉक्स अरेंज करके हमारा प्रोग्रामिंग लॉजिक डेवलप कर सकते हैं। ठीक है गाइस, दिस इज लाइक प्रोग्रामिंग लॉजिक। ठीक है, कि मतलब आपको प्रैक्टिस से ही आएगा ये चीजें, कि कौन से ब्लॉक में मतलब कब कौन सा ब्लॉक यूज करना है, कब कौन सी कंडीशन लिखनी है, सो दैट हमारा गेम प्रॉपरली वर्क हो। ठीक है, सो बेटर यू प्रैक्टिस, इफ यू प्रैक्टिस इट बेटर, इफ यू प्रैक्टिस इट मोर, तो वैसे वैसे आपका लॉजिक डेवलप होते जाएगा उसका। मूविंग फॉरवर्ड, अब हमारा स्कोर तो हो गया। ठीक है, स्कोर बोर्ड तो ऐड हो गया। नाउ when will be the condition of game over? When it meets the player paddle, right? ठीक है, this is the correct answer, like whenever it misses the player paddle। ठीक है, ये प्लेयर पैडल को मिस कर रहा है तो इट शुड बी गेम ओवर। ठीक है, तो फॉर दिस आई विल टेक वन इफ ब्लॉक, इफ ब्लॉक। ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा कि प्लेयर पैडल को मिस कर रहा है करके? उसके लिए आई नीड टू हैव सम वैल्यू, राइट। तो हम लोग देखेंगे कि बॉल बॉल ये जो बॉल है, ठीक है, इसका जो वाई पोजीशन एक्स पोजीशन है, अगर एक्स पोजीशन जैसे अभी देखो यहाँ पे बॉल में सेंटर में रखा तो इस एक्स पोजीशन लगभग 0 0 है। ठीक है, 0 0, दिस इज सेंटर। अगर मैं बॉल को यहाँ मूव करके रख रहा तो इसकी एक्स पोजीशन चेंज हो रही है, वाई पोजीशन चेंज हो रही है। वी कैन नो द करंट पोजीशन ऑफ द स्प्राइट बाय लुकिंग एट हियर एक्स पोजीशन एंड वाई पोजीशन। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि मेरा बॉल अगर इसको क्रॉस कर जाता है, ठीक है, मतलब इसकी एक्सपोजिशन क्या होगी, लेस देन 205 से हियर। ठीक है, अगर 205 से कम होती है, देखो इस इधर मूव करता मैं तो 205 से निगेटिव में गई वैल्यू। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि लेस देन 205 अगर मेरी एक्स वैल्यू जाती है बॉल की तो इट शुड बी गेम ओवर। ठीक है, तो आई विल डू द सेम थिंग। अगर हम लोग ऑपरेटर्स में जाएंगे, यू हैव दिस लेस देन ऑप्शन हियर। ठीक है, राइट।
और मुझे क्या चेक करना है, बॉल की एक्स पोजिशन ना, तो एक्स पोजिशन मेरे मोशन ब्लॉक में है, सी हियर, दिस इज एक्स पोजिशन। जैसे हमने लास्ट टाइम वाई पोजिशन यूज किए थे, वैसे इस बार एक्स पोजिशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो इफ एक्स पोजिशन ऑफ बॉल इज लेस देन -205, राइट। और अगर मैं इसमें डालता हूँ, ठीक है, तो हमारा ये कंडीशन पूरी बन जाती है कि इफ एक्स पोजिशन इज लेस देन -205, देन इट शुड बी गेम ओवर, राइट। और गेम ओवर जब हो, देन आई वांट द गेम टू स्टॉप, कंप्लीटली स्टॉप, ठीक है। सो हम लोग कंट्रोल्स ब्लॉक में जाएंगे, यहाँ पे देखो स्टॉप 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 ब्लॉक है, सो आई विल एड इट हियर, स्टॉप, ठीक है। लेट्स सी अगर मतलब कुछ चेंजेस हो रहे क्या। आई विल स्टार्ट द गेम, स्टॉप हो गया, उसने पैडल क्रॉस कर दिया, स्टॉप हो गया। वंस मोर, ठीक है। वंस मोर आई विल प्ले, देखो स्कोर 1, स्कोर 2 एंड दिस इज स्टॉप, मीन्स इट हैज एंटर्ड इन दिस कंडीशन, और वो गेम स्टॉप हो गया, ठीक है। कूल। सो वन मोर थिंग आई वांट, कि जब भी मेरा गेम स्टॉप हो, तो मैं चाहता हूँ कि गेम मेरे इसमें गेम ओवर मैसेज डिस्प्ले हो, ठीक है। मृणाल ने ऑलरेडी बताया कि मैसेज कैसे डिस्प्ले करना, ठीक है। मतलब वो कैट और लेडी के कन्वर्सेशन में आपने देखा कि यू कैन डिस्प्ले द मैसेज, ठीक है। हम लोग यहाँ पे और एक टेक्निक सीखने वाले हैं, लाइक यू कैन हाउ यू कैन डिस्प्ले द मैसेज, ठीक है। हमारा फिलहाल बैकड्रॉप है हमारा वॉल, ठीक है। सो ऑन राइट साइड यू कैन सी द बैकड्रॉप, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे राइट साइड में क्लिक करते हैं, तो यू हैव ए ऑप्शन ऑफ बैकड्रॉप हियर, ठीक है। हमारा फिलहाल है वॉल 1 बैकड्रॉप। आई विल डुप्लीकेट दिस, ठीक है। नेम इट एज गेम ओवर, वॉच इट केयरफुली गाइज। ये बहुत अच्छा तरीका है गेम ओवर कराने का, मतलब गेम ओवर दिखाने का, ठीक है। सो आई विल राइट अ टेक्स्ट हियर, गेम ओवर, ओके, चेंज द कलर, ठीक है। मूव इट टू सेंटर, ठीक है। ये हमारा बन गया गेम ओवर का बैकड्रॉप, ठीक है। और ये हमारा है इनिशियल बैकड्रॉप, ठीक है। लेट्स हेड बैक टू कोड, बॉल के कोड में, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि अभी मैंने बैकड्रॉप चेंज किया, गेम ओवर वाला बैकड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पहले से गेम ओवर लिख के आ रहा है। तो जब भी मैं गेम स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यू कैन सी कि पहले से गेम ओवर लिख के आ रहा है, और अब मेरा बॉल यहाँ, ठीक है, बॉल हमारा स्टार्टिंग पोजीशन पे भी नहीं जा रहा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं गेम स्टॉप कर रहा, ठीक है, बॉल इस पोजीशन पे है, देन आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम हियर, तो बॉल उसी पोजीशन से चालू हो रहा है, ठीक है। तो वी कैन डू वन थिंग, कि जब भी गेम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जैसे हमने, वॉच इट केयरफुली गाइस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे हमने इनिशियल में सेट स्कोर टू 0 किए, सिमिलरली वी कैन सेट द पोजिशंस ऑफ द बॉल एंड द पैडल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन मोशन ब्लॉक्स यू हैव गो टू ब्लॉक, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बॉल स्प्राइट है, ठीक है, हमेशा ओरिजिन से चालू हो, ठीक है। तो आई विल से सेट इट टू 0 0, ठीक है। और मैं बोलता कि मेरा फर्स्ट बैकड्रॉप भी है, बैकग्राउंड वो इनिशियल वाला हो, ठीक है, बस वॉल वाला। तो आई विल गो इन लुक्स एंड स्विच बैकड्रॉप टू वॉल 1, ठीक है।
और इसके बाद मैं ये फॉर एवर लूप लगा रहा, ठीक है। सो देखो अब मेरा बैकड्रॉप चेंज हो गया, गेम ओवर, प्लेइंग इट वंस मोर, कूल। मेरा इनिशियल बैकड्रॉप भी आ रहा, जब मैं गेम रिस्टार्ट कर रहा तो बॉल हमेशा ओरिजिन से चालू हो रहा है, दैट्स कूल, ठीक है। ये भी अच्छा हो रहा है, ठीक है। सो नाउ आई वांट कि जब भी गेम ओवर हो और जब कुछ स्टॉप हो तब आई वांट टू चेंज माय बैकड्रॉप टू गेम ओवर बैकड्रॉप, ठीक है। यू कैन सी हमने 2 बैकड्रॉप बनाए हुए हैं, वन इज वॉल 1 एंड वन इज गेम ओवर, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ कि जब भी गेम ओवर हो और ये स्टॉप हो तब मेरा बैकड्रॉप स्विच हो, ठीक है। आई वांट टू स्विच माय बैकड्रॉप टू गेम ओवर, डन। लेट्स प्ले द गेम। यू सी जब मेरा गेम ओवर हुआ स्टॉप हुआ तब बैकड्रॉप चेंज हुआ मेरा, दैट्स कूल। गेम ओवर, ओके। सो मोस्ट ऑफ द पार्ट इज कंप्लीट। जब भी मेरा गेम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तब मेरा इनिशियल बैकड्रॉप से रन हो रहा है, और जब मेरा गेम एंड हो रहा है देन द बैकड्रॉप गेट्स चेंज्ड, ठीक है। देखो इनिशियल बैकड्रॉप है और जैसे मेरा गेम एंड हो जाएगा, गेम ओवर, हियर इट इज गेम ओवर। हाँ, वन मोर थिंग वी कैन डू, देखो जब हम लोग गेम स्टार्ट कर रहे हैं ना, तब हमारा बॉल हमेशा लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है स्टार्टिंग में, तो प्लेयर को थोड़ा सा कंफर्टेबल करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि बॉल हमेशा राइट साइड से शुरू होना चाहिए, मतलब फर्स्ट इट शुड मूव टू कंप्यूटर पैडल एंड देन कम बैक हिटिंग इट, ठीक है। तो हम लोग एक काम करेंगे, मोशन में और एक होता है ब्लॉक हमारा पॉइंट इन डायरेक्शन, उसको भी इनिशियल पोजीशन पर डालेंगे, पॉइंट इन डायरेक्शन टू 90। तो ये डालने के बाद देखो देखो एक बात नोटिस करो कि जब मैं ये ब्लॉक यहाँ पे नहीं डाल रहा, ठीक है, तो हमारा बॉल स्टार्ट कैसे हो रहा है, देखो रैंडमली पोजीशन पे चालू हो रहा है हमेशा, ठीक है। वापस चालू करता किसी भी रैंडम पोजीशन में चालू हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चालू हो, वो भी राइट साइड में, ठीक है। सो आई इंक्लूडेड दिस ब्लॉक। अब चालू करके देखते हैं, देखो हमेशा 90 डिग्री पे चालू हुआ, वंस मोर, इस बार भी 90 डिग्री पे चालू हुआ, ठीक है। दैट्स ऑल। सो आवर बेसिक गेम डेवलपमेंट इज डन, ठीक है। इसमें देखो आप एक बार समराइज कर लेता मैं, प्लेयर पैडल में क्या किया हमने, प्लेयर पैडल में बस हम लोगों ने माउस का जो वाई पोजीशन है उसको नोट किए और उसके हिसाब से प्लेयर पैडल का माउस की प्लेयर पैडल की वाई पोजीशन चेंज किया, ठीक है। कंप्यूटर पैडल में हम लोगों ने बॉल की वाई पोजीशन को ट्रैक किया, ठीक है। बॉल जहाँ जहाँ जा रहा है उसकी वाई पोजीशन को ट्रैक किए और कंप्यूटर पैडल की वाई पोजीशन को उसके हिसाब से सेट किए, ठीक है। बॉल के कोड में हम लोगों ने फर्स्ट हम लोगों ने उसको मूव किए, सेकंड जब वो एजेस को हिट कर रहा है वहां से रिफ्लेक्ट बैक किए, बाउंस बैक कर रहा है। थर्ड, जब वो कंप्यूटर पैडल को टच कर रहा है इट शुड बाउंस बैक विथ रैंडम डिग्रीज, ठीक है। फोर्थ, जब वो प्लेयर पैडल को टच हो रहा है तब इट शुड बाउंस बैक अगेन एंड स्कोर शुड इंक्रीज, और जब भी वो प्लेयर पैडल उसको मिस कर रहा है बॉल को, द गेम शुड बी ओवर और अपना बैकड्रॉप चेंज होना चाहिए, राइट। सो दिस वाज आवर बेसिक गेम डेवलपमेंट। हम लोग उसको फुल स्क्रीन में खेलेंगे एक बार, ठीक है। लेट्स प्ले। स्कोर इज 0-1। हाँ, यू कैन डू वन मोर थिंग, लाइक मतलब आप इसको डिफिकल्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे बॉल की स्पीड बढ़ानी है, ठीक है, इसको मैं लेट्स से 18 करता, ठीक है, 18 करता। लेट्स प्ले इट फुल स्क्रीन। सी द स्पीड ऑफ द बॉल, ठीक है। अगर इसको स्लो करना है तो वी कैन स्लो दिस, लाइक मूव के स्टेप स्लो कम कर देंगे हम लोग, लाइक से 5, ठीक है। इट इज मूविंग वेरी स्लोली,
ठीक है. So you can control, you can experiment lot of stuff, right? मतलब आप इनिशियल के साथ ये कर सकते हो इस गेम को, मतलब कुछ भी किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हो आप यू कैन ऐड अनदर वेरिएबल्स, यू कैन डिफाइन स्कोर डिफरेंटली, यू कैन मूव द बॉल रैंडमली. ठीक है. तो डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिविटी कि आप कैसे उसको एडिट करते हो, कैसे आप उसको ले जाते हो. ठीक है. सो दिस इज अवर लास्ट गेम डेमो फॉर टुडे. ठीक है. That's it. So I would like to conclude here today. अभी किसी को डाउट्स है? Let's have a doubt clearing session. I invite like Nunal. Please, you also unmute yourself. Yes, you can ask doubts. Hello. Yes, Varun. Can we use level 1, level 2? Sorry. So, Say it once more. You were No. quite. your voice is not clear, Varun. Hello. हाँ. Can we use level 1, level 2, like to move the fast the ball? For yeah, sure you can. Means you can set a different speed for level 1. Then after some time you can set different speed for level 2. ठीक है. Even you can, I say you can like have one thing कि जैसे अगर एक बार प्लेयर मिस कर रहा है बॉल को, ठीक है, जब फर्स्ट टाइम गेम ओवर हो रहा है तब यू कैन डिक्रीज द स्पीड. सेकंड टाइम गेम ओवर हो रहा है, यू कैन स्टिल डिक्रीज द स्पीड. तो वॉट एवर means you can do that thing what you asked. Okay, thank you. Hello. हाँ सिद्धेश. Hello. Yes. Yes. If we want to means if the user wants to give the input that whether he wants the left side pedal or right side pedal, then in that case how we will do? You can do it like जैसे देखो हम लोग जब गेम स्टार्ट कर रहे हैं, फ्लैग ग्रीन फ्लैग क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, तब वहां पे हम लोग क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं. ठीक है. क्वेश्चन आस्क करेंगे कि लाइक विच साइड पैडल यू वांट प्लेयर को, क्वेश्चन मार्क. ठीक है. जो भी आंसर आ रहा है यू नो कि हमारा आंसर कहाँ पे स्टोर हो रहा है. आंसर स्टोर हो रहा है हमारा एक आंसर वाले ब्लॉक में. ठीक है. जो मृणाल ने दिखाया था. आई विल शो इट वंस मोर. हाँ दिस ये वाला ब्लॉक. ठीक है. तो जो भी हम लोग क्वेश्चन आस्क करेंगे वो हमारे ये वाले ब्लॉक में स्टोर होगा. ठीक है. देन यू कैन, हम लोग इफ में कंडीशन डाल सकते हैं कि अगर आंसर ये है, मतलब इफ आंसर इज लेफ्ट पैडल, ठीक है, तो ये जो सारा कोड है वो लेफ्ट पैडल के इसमें डाल देंगे. और इफ आंसर इज राइट पैडल तो कंप्यूटर वाला कोड इधर स्विच कर देंगे, ये वाला कोड उधर स्विच कर देंगे. ठीक है. तो बस कोड की लेंथ डबल हो जाएगी. ठीक है. ये जो कोड का लेंथ है ना, इसी को हम लोग डुप्लीकेट मतलब कॉपी करके कोड की लेंथ डबल हो जाएगी, बट यू कैन अचीव दैट. Everything is clear to you? हाँ, Sanket has one more thing, like can we make complex games or only simple mini clip games? See, you can come up with really complex games. ठीक है. मतलब इसके भी कोड्स होते हैं जो अच्छे खासे लंबे होते हैं, like you have to scroll a bit. ठीक है. Like you can go for like thousands of blocks combining together and making a complex game. ठीक है. But the thing is कि ये जो व्यू रहेगा इसका, ठीक है, व्यू हमेशा वैसा मिलेगा, मतलब थोड़ा सा एनिमेशन टाइप मिलेगा. जो अभी दिख रहा है ना आपको, बेसिक वाला एनिमेशन टाइप वैसा दिखेगा, बट यू कैन रियली कम अप विथ ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. Hello, sir. हाँ सिद्धेश. Sir, we can add sound to that whenever the ball strikes the pedal, we can add the sound now. Yeah, right. So that's what I am trying to say कि मतलब you can show any create, मतलब you can come up with anything. मतलब देखो तुम्हारे पास इतने सारे ऑप्शंस है, इतने सारे ब्लॉक्स है. ठीक है. और इतने सारे मतलब स्प्राइट्स की लाइब्रेरी है,
whatever you think you can, ठीक है, आप just try करके देखो, you have endless of things here, ठीक है. और another thing I would like to tell you कि this Scratch programming is, the user interface is very user friendly, ठीक है. मतलब इतना अच्छा यूजर इंटरफेस आपको शायद कोई डेवलपिंग एनवायरनमेंट का नहीं मिलेगा. मतलब यू चूज एनी लैंग्वेज और एनी गेम डेवलपमेंट थिंग, इससे बेटर आपको यूजर फ्रेंडली इंटरफेस नहीं मिलेगा, ठीक है. मतलब जहाँ पे आपके ब्लॉग्स, विजुअल प्रोग्रामिंग करना है, ब्लॉग्स को अरेंज कर करके, एंड यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस हियर, यू कैन कम अप विथ एवरीथिंग, व्हाटएवर यू थिंक यू कैन बिल्ड इट हियर, ठीक है. तो यू जस्ट हैव टू एक्सपेरिमेंट विथ इट, ठीक है. और नॉट ओनली दिस कि मतलब गेम डेवलपमेंट, यू कैन मेक एनिमेशंस एंड स्टोरीज विथ दिस. और जो हमने रोबोटिक्स बोले थे वो भी कर सकते हैं. लाइक लेगो किट्स आते हैं, लेगो के बॉट्स आते हैं, उनको प्रोग्राम कर सकते हैं यूजिंग स्क्रैच, ठीक है. और एंड एज लिमिटेशन इज नॉट देयर, ठीक है. ये विजुअल प्रोग्रामिंग लाइक 4th स्टैंडर्ड से बच्चे सीख रहे हैं. अपने इंडिया में थोड़ा सा कम है इसका क्रेज, बट दिस स्टेम एजुकेशन मीन्स यूरोप और यूएस में वगैरह, लाइक स्टूडेंट्स फ्रॉम 4th स्टैंडर्ड आर लर्निंग दिस स्क्रैच, ठीक है. और लिमिटेशन इन द सेंस 50-60 के बुढ़े लोग भी सीख रहे हैं, ठीक है. मतलब अपने यहाँ इंडिया में कम्युनिटी थोड़ी कम है, बट व्हेन वी अटेंडेड द वर्कशॉप, फॉरेन वर्कशॉप्स, इंटरनेशनल वर्कशॉप्स, उसमें हमने देखा कि लाइक अच्छे लोग, लाइक 40-50 ईयर्स के लोग भी अटेंड कर रहे हैं, वो लोग भी सीख रहे हैं प्रोग्रामिंग, ठीक है. सो दिस इज अ रियली कूल स्टफ, जिससे आप प्रोग्रामिंग और अपना प्रोग्रामिंग लॉजिक डेवलप करना सीख सकते हो. सो यू कैन एक्सपेरिमेंट विद इट. एनी डाउट्स अगेन? यस, यहाँ पे एक डाउट दिख रहा है. डाउट इन द सेंस ही इज आस्किंग, सर कार्टून डेवलप कर सकते हैं क्या? तो Yeah. ऑब्वियसली यस. यस, कंटिन्यू. हाँ, हम लोग लाइक एक बेसिक एग्जांपल मृणाल ने दिया था एक कन्वर्सेशन का. तो स्टोरीज एनिमेशंस डेवलपमेंट तो you can have always. I don't think you want me to do that, means it is out of the scope of this workshop. मतलब हम लोग टाइम लिमिटेशन है हमारे पास. हम लोग अगर आपको बहुत कुछ सिखा रहे हैं, बहुत कुछ चीजें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वी हैव दैट लिमिटेशन, ठीक है. तो हम लोग स्क्रैच की सारी चीजें नहीं करके दिखा सकते. वी आर स्टिल फोकसिंग ऑन गेम डेवलपमेंट पार्ट, ठीक है. गेम डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्टिंग इट टू एंड्रॉइड फोन, ठीक है. That's all for today's session, guys. Hope to see you tomorrow. Thank you. थैंक यू.